بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے، اور وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے، اور اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے، اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم یقیناً انہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے بعد جب راہ خدا میں کوئی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنے کو عذاب خدا کے جیسا قرار دے دیا، حالانکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے۔ تو کیا خدا ان کی باتوں سے باخبر نہیں ہے جو عالمین کے دلوں میں ہے؟ اور وہ یقیناً انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو منافق ہیں۔ اور یہ کفار ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو، ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اور سراسر جھوٹے ہیں۔ اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی، اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا جن کا یہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گڑھتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا۔ بے شک وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور تم زمین اور آسمان میں اسے عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست یا مددگار بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ خدا کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔
तो परवरदिगार ने इन्हें इस आग से निजात दिला दी। बेशक इसमें भी साहिबान ईमान के लिए बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुमने सिर्फ जिंदगानी दुनिया की मोहब्बतों को बरकरार रखने के लिए खुदा को छोड़कर बुतों को इख्तियार कर लिया है। इसके बाद रोज़ क़यामत तुम में से हर एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा, जबकि तुम सब का अंजाम जहन्नुम होगा और तुम्हारा कोई मददगार न हो। फिर लूत इब्राहिम पर ईमान ले आए और इन्होंने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूं कि वो ही साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है। और हमने इन्हें इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और फिर इनकी ज़ुर्रियत में किताब और नबूवत करार दी और इन्हें दुनिया में भी इनका अज्र अता किया और आखिरत में भी इनका शुमार नेक किरदार लोगों में होगा। और फिर लूत को याद करो जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग ऐसी बदकारी कर रहे हो जो सारे आलम में तुमसे पहले कभी किसी ने भी नहीं की है। तुम लोग मर्दों से जिनसी ताल्लुकात पैदा कर रहे हो और रास्ते कता कर रहे हो और अपनी महफिलों में बुराइयों को अंजाम दे रहे हो। तो इनकी कौम के पास इसके अलावा कोई जवाब ना था कि अगर तुम सादिकीन में से हो तो वो अजाब इलाही ले आओ जिसकी खबर दे रहे हो। तो लूत ने कहा, परवरदिगार तू इस फसाद फैलाने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे नुमाइंदा फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए और उन्होंने ये खबर सुनाई कि हम इस बस्ती वालों को हलाक करना चाहते हैं कि इस बस्ती के लोग बड़े जालिम हैं, तो इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम सबसे बाखबर हैं, हम उन्हें और उनके घर वालों को निजात दे देंगे, अलावा उनकी ज़ौजा के कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। फिर जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो परेशान हो गए और उनकी मेहमानी की तरफ से दिल तंग होने लगे। उन लोगों ने कहा कि आप डरे नहीं और परेशान ना हो, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, सिर्फ आपकी ज़ौजा को नहीं कि वो पीछे रह जाने वालों में हो गई है। हम इस बस्ती पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं कि ये लोग बड़ी बदकारी कर रहे हैं। और हमने इस बस्ती में से साहिबाने अक्ल होश के लिए खुली हुई निशानी बाकी रखी है। और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो इन्होंने कहा कि लोगों, अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखिरत से उम्मीदें वाबस्ता करो और खबरदार जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। तो उन लोगों ने इन्हें झुटला दिया और नतीजे में उन्हें एक ज़लज़ले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो अपने घरों में औंधे जानों के भल पड़े रहे। और आद और समूद को याद करो कि तुम लोगों के लिए उनके घर भी सरे राह वाज़े हो चुके हैं और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को आरास्ता कर दिया था और उन्हें रास्ते से रोक दिया था, हालांकि वो लोग बहुत होशियार थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी याद दिलाओ जिनके पास मूसा खुली हुई निशानियां लेकर आए तो उन लोगों ने जमीन में इस्तकबार से काम लिया, हालांकि वो हमसे आगे जाने वाले नहीं थे। फिर हमने हर एक को उसके गुनाह में गिरफ्तार कर लिया। किसी पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी, किसी को एक आसमानी चीख ने पकड़ लिया और किसी को जमीन में धंसा दिया और किसी को पानी में गर्क कर दिया। और अल्लाह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है, बल्कि ये लोग खुद अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। और जिन लोगों ने खुदा को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि इसने घर तो बना लिया, लेकिन सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। अगर इन लोगों के पास इल्म व इदराक हो, बेशक अल्लाह खूब जानता है कि उसे छोड़कर ये लोग किसे पुकार रहे हैं और वो बड़ी इज्जत वाला और साहिब हिकमत है। और ये मिसालें हम तमाम आलम इंसानियत के लिए बयान कर रहे हैं, लेकिन इन्हें साहिबाने इल्म के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है और इसमें साहिबाने ईमान के लिए उसकी कुदरत की निशानी पाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किताब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की गई है, इसे पढ़कर सुनाएं और नमाज कायम करें कि नमाज हर बुराई और बदकारी से रोकने वाली है
اور اللہ का जिक्र बहुत बड़ी शय है और अल्लाह तुम्हारे कारोबार से खूब बाखबर है। और अहले किताब से मुनाजरा ना करो मगर इस अंदाज से जो बेहतरीन अंदाज है, अलावा इनके जो इनमें से जालिम है, और ये कहो कि हम इस पर ईमान लाए हैं जो हमारी और तुम्हारी दोनों की तरफ नाजिल हुआ है, और हमारा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम सब उसी के अताअत गुजार हैं। और इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की, तो जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब पर ईमान रखते हैं, और इनमें से भी बाज लोग ईमान रखते हैं, और हमारी आयात का इनकार काफिरों के अलावा कोई नहीं करता है। और ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान से पहले न कोई किताब पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे, वरना ये अहले बातिल शुबे में पड़ जाते। दर हकीकत ये कुरान चंद खुली हुई आयतों का नाम है जो इनके सीनों में महफूज हैं, जिन्हें इल्म दिया गया है, और हमारी आयात का इनकार जालिमों के अलावा कोई नहीं करता है। और ये लोग कहते हैं कि आखिर इन पर परवरदिगार की तरफ से आयात क्यों नहीं नाजिल होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि आयात सब अल्लाह के पास हैं, और मैं तो सिर्फ वाज़े तौर पर अज़ाब इलाही से डराने वाला हूं। क्या इनके लिए यह काफी नहीं है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की है जिसकी इनके सामने तिलावत की जाती है, और यकीनन इसमें रहमत और ईमानदार कौम के लिए याद दहानी का सामान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए खुदा काफी है जो आसमान और जमीन की हर चीज से बाखबर है। और जो लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं वो यकीनन खसारा उठाने वाले लोग हैं। और ये लोग अजाब की जल्दी कर रहे हैं, हालांकि अगर उसका वक्त मुअय्यन न होता तो अब तक अजाब आ चुका होता, और वो अचानक ही आएगा जब इन्हें शऊर भी न होगा। ये अजाब की जल्दी कर रहे हैं, हालांकि जहन्नुम यकीनन काफिरों को अपने घेरे में लेने वाला है। जिस दिन अजाब उन्हें ऊपर से और नीचे से ढांक लेगा और कहेगा कि अब अपने आमाल का मजा चखो। मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन बहुत वसी है, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है, इसके बाद तुम सब हमारी बारगाह में पलटा कर लाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए हैं और इन्होंने नेक अमाल किए हैं, इन्हें हम जन्नत के झरोकों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो हमेशा इन्हीं में रहेंगे कि ये इन अमल करने वालों का बेहतरीन अज्र है जिन लोगों ने सब्र किया है और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते रहे हैं। और जमीन पर चलने वाले बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी रोजी का बोझ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन खुदा इन्हें और तुम्हें सबको रिज़्क़ दे रहा है, और वो सबकी सुनने वाला और सबके हालात का जानने वाला है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछेंगे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है और आफताब और महताब को किसने मुसख्खर किया है, तो फौरन कहेंगे कि अल्लाह। तो ये किधर बह के चले जा रहे हैं? अल्लाह ही जिसके रिज़्क़ में चाहता है वुसअत पैदा कर देता है, और जिसके रिज़्क़ को चाहता है तंग कर देता है। वो हर शय का खूब जानने वाला है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछेंगे किसने आसमान से पानी बरसाया है और फिर जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा किया है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ही है। तो फिर कह दीजिए कि सारी हमद अल्लाह के लिए है, और इनकी अक्सरियत अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रही है, और ये जिंदगानी दुनिया एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और आखिरत का घर हमेशा की जिंदगी का मरकज है, अगर ये लोग कुछ जानते और समझते हो। फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो ईमान और अकीदे के पूरे इखलास के साथ खुदा को पुकारते हैं। फिर जब वो निजात देकर खुशकी तक पहुंचा देता है तो फौरन शिर्क इख्तियार कर लेते हैं, ताकि जो कुछ हमने अता किया है इसका इनकार कर दें और दुनिया में मजे उड़ाएं, तो अनकरीब इन्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने इनके वास्ते एक महफूज हरम बना दिया है जिसके चारों तरफ लोग उचक लिए जाते हैं,
تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے؟ تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ